The knockouts now of the Vijay Hazare Trophy 2024-25, Karnataka versus Baroda, the home team taking the semi-finalists from last year. And it's Baroda who won the toss. These are the two lineups. Looking at the combinations, available resources for the team Baroda, 121 innings, 5,578 runs, averaging 50. And at the other end, Devdutt Padikkal, 1,875 runs in 30 innings in this list A career. Lukman Meriwala will be starting off proceedings for Baroda. Good delivery right on the channel. Nicely timed. Man in form picks up a boundary to open his account. That's a good shot. Full lofted drive. One bounce. And ball trickles into the fence for 4. Pulled behind square. Finds a boundary. Takes full advantage. Down the track. AG straight to third. He's caught on the boundary. Agarwal is gone. He's gone for 6. A scratchy innings from Agarwal comes to an end. Meriwala strikes for Baroda. Mayank Agarwal 6 run बनाकर out. 30 पर 1 कर्नाटका. KV Anish comes to the crease, averaging 58, 3 half centuries to his credit. और ये 5वां चौका रहेगा. ये काफी देर से इंतजार कर रहे थे. इस बार बनेगी गुंजाइश. सिंगल की 4 की बनेगी. डीप में फील्डर थे लेकिन प्रयास किया, कामयाब हुए नहीं. लंबे इंतजार के बाद 21 गेंदों बाद ये बाउंड्री आई है. पहला छक्का कर्नाटक की तरफ से आता हुआ. आगे आए कदमों का इस्तेमाल पाडिक्कल द्वारा. Down the track, getting it fine up in the circle. He picks up yet another boundary. Back-to-back boundaries from the blade of Padikkal. In the air. Nicely worked away on the onside. It's a half century for Anish. 50 of 60 deliveries. A fine 5.5 century. It's been applauded by teammates sitting in the dugout as well. A crucial half century from the blade of Anish to provide the stability. Stroke beautifully. Lofted stroke straight to the fielder. He was brought into the attack with the prospect of getting a wicket, and Limbani has broken through. Partnership broken now. Anish the better out. अनीश 52 रन बनाकर जा रहे हैं. 163 पे 2. स्मरण क्रूशल बैटर. पाडिक्कल 95 गेंदें, 99 रन. इंतजार है तालियों की गड़गड़ाहट का. ये आएगी जरूर. और डायरेक्ट लगती तो अरमान दिल में ही रहे थे, लेकिन यहां हो गया शतक पूरा. मैदान पर अच्छी खासी दर्शकों की संख्या. ये शतक का भरपूर तालियों के साथ अभिवादन किया. ड्रेसिंग रूम कर्नाटक का सभी खिलाड़ियों ने खड़े होकर उनके शतक का अभिवादन किया है. Top edge. Wicketkeeper calls for it. And he has hung on to it. Limbani breaking through once again. It's a Centurion. Padikkal who departs for 102. A timely wicket for Baroda to celebrate. Centurion departs for 102. 172 for 3. Wonderful stroke off the back foot. Age is found. Third up in the circle. Should run away to the fence for 4. Oh, he's completely missed that one. Was there an inside edge as well? That was coming in. इस बार ठीक बॉलर के ऊपर थे. इस बार मौका नहीं था पांड्या के पास. और चेतन, इसके बाद ये भी है ना, ये पावर प्ले में फिर एक अतिरिक्त फील्डर आपको बाहर मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा पहले गेंद बाहर भेज दूं मैं. Takes the aerial route, goes downtown. One bounce and
That will be 4. खत्म, ये लीजिए मैच। रन गति बढ़ाना चाह रहे थे और लिम्बानी को मिली है सफलता। ये एक और समरन को उन्होंने साफ बोल्ड कर दिया। बिना गेंद की लाइन में बड़ा हिट करना चाहते थे, रन गति बढ़ाना चाहते थे, लेकिन रन गति तो बढ़ी नहीं। Smaran gone for 28. It's 221 for 4. अभिनव मनोहर 11 पारी 282 टोटल जमा पूंजी, 2 अर्धशतक हैं, 91 सर्वश्रेष्ठ। हवा में सीधा फील्डर के पास और यहां पर एक और विकेट। मेरीवाला के हाथ में एक और कैच आया और कोई गलती नहीं। Srijit goes for 28, 2 to 6'5". Hardik Raj into his second innings, 27 runs so far. Magnificent delivery, drawing the batter forward. And the decision has been referred to the third umpire. The ball is fairly collected. Yeah, next frame. Yes, you can freeze it here. जिस विकेट की तलाश थी कृणाल पांड्या के खाते में, वो विकेट आ गई है। कोई रन नहीं बनाया है, केवल 2 गेंदों का सामना किया है। 227 पे 6। Suresh Gopal averaging 27, 4 half centuries to his credit. Pulled majestically into the gap for 4. Smacked it down the ground. Handsome striking. Driven it straight down the ground. He has drilled it for 4. Full toss. Smacked it, belted down the ground for 6. Lofted it, not in control. It's caught on the boundary. Atit has got his second wicket. It's a Shreyas Gopal who is out for 16. इनाम मिला है और इनाम के हकदार भी हैं अतीत। श्रेयस गोपाल होकर जा रहे हैं। 16 रन बनाए हैं उन्होंने, 253 पे 7। Prashit Krishna comes to the crease, best of 9 runs in List cricket. यहां पर फिर से एक बार गेंद हवा में और इस बार बड़ा शॉट। Shot straight down the ground. That is a humongous hit. लो फुल टॉस यहां पर सीधा हाथ में, बढ़िया कैच और एक और विकेट यहां पर। राज लिम्बानी ही, चोट तो उन्हें नहीं लगी है। So Manohar departs for 21, 273 for 8 Karnataka. Abhilash Shetty at the age of 26. He's found the gap and he's found the boundary as well. He's taken the single, he's coming back for the second. That's brilliant. That's good running between the wickets. 2 runs of the last delivery of the first innings. अच्छी गेंदबाजी रही और कर्नाटका की पारी 281 पे 8 पे ही सिमट गई। Baroda need 282. शाश्वत रावत 14 पारी में 423 रन है। निनाद राठवा भी जाने जाते हैं, 136 सर्वश्रेष्ठ है, 1 शतक है इनका। वासुकी कौशिक 42 मैच में 77 विकेट हैं। Straight away getting the ball to bounce. ये बाउंड्री मिल जाएगी। यहां पर खराब लाइन। It's found just away from the slip fielder, down to third for 4. Lucky boundary. क्लॉक होल के अंदर आते ही सफलता दिला दी। पहली गेंद पर ड्राइव करना चाहते थे, लगभग ओवर पिच गेंद थी। Keep it rolling. Yes, next frame. I can see the fingers are underneath the ball. Next frame. Yeah, satisfied. It's a fair catch. अभी सेठ आए हैं नए बल्लेबाज। Back of length again. Pulled away. This time the fielder will not be able to cut it off. Again erring in line. Flicked off his pass. That will be a boundary to finish off the over. Drives handsomely. Wants a run. Will get there. Half century for Shashwat. 50 of 62. A good composed innings to keep Baroda in the hunt. You can expect applause from his teammates. Calculated अर्धशतक कहेंगे हम यहाँ पर।
हवा में ये गेंद स्वीप करने की कोशिश और फील्डर ने छोड़ दी है ये कैच। प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों से छूटा ये मौका। Glorious stroke. That is an outrageous shot for 6. Remarkable ball striking from Seth. And he rages his half century as well. 54 of 56. And what a way to get to your half century. It's been an entertaining innings from Seth already. ये काम हो गया, ये काम हो गया। मैं कह ही रहा था आपसे कि ऐसे गेंदबाज हैं जो कभी भी दिक्कत पैदा कर देंगे और दिक्कत पैदा कर दी। सेठ जिन्होंने अभी अभी अर्धशतक पूरा कराया, आगे निकलकर डबल बाइंड हो गए थे। गेंद को शॉट खेलें या रोकें। अतीत से 56 रन बनाए, 130 2 विकेट पे बरौटा। Krunal Pandya, a tough combative captain of the side. ट्राई किया था लेकिन इस बार फायदा उठाया कृणाल पांड्या ने। फिर से स्वीप किया और एक और बाउंड्री। फिर से शॉर्ट गेंद और ये लीजिए एक और बड़ा शॉट। Edge and that's taken. We were talking about the wicket and that has come. Wide delivery, it was chased and what a catch. लंबा डाइव किया, शानदार प्रदर्शन किया। कृणाल पांड्या 30 रन बनाकर आउट हुए, 185 3 विकेट पर। New batter in, Vishnu Solanki. जोरदार अपील हो रही है, आउट दिया गया है, उंगली उठी है। क्या ये ले डीआरएस की तरफ गए? जी हाँ, डीआरएस ले लिया है। Rolling, flat line as the ball passes the glove and the bat. Satisfied, no bat involved. Pitching in line, impact in line, wickets hitting. Original decision is out. Can we go back to Abhijit? You're on screen. Vishnu Solanki is out. LBW for 1, 188 for 4. शिवालिक शर्मा 26 वर्षीय। Gorgeous. Glorious stroke straight down the ground, straight to the fielder. Mayank Agarwal is delighted. That is a sensational catch. शिवालिक शर्मा 5 रन बनाकर आउट, 201 पे 5। 28 वर्षीय भानु, 363 रन है। Good shot through the extra cover. Amazing stroke for 4. जहां गैप में खेला है और ये हुआ शतक। शानदार पारी, जानदार पारी, दमदार पारी शाश्वत की, जिन्होंने उम्मीद जगाए रखी है बड़ौदा की। एक अकेला खिलाड़ी संघर्ष करता हुआ एक छोर पर। अब देखिए भारी संख्या में जो दर्शक आए हैं, जोरदार तालियों से उसके शतक का अभिनंदन कर रहे हैं। कुछ आतिशबाजी की आवाज भी आई है। Great moment. First century in this cricket for Shashwat. That's a humongous blow. That's gone the distance. That's gone for 6. A crowd catcher. फिर से धीमा गेंद और एक और बाउंड्री। Beautiful delivery. And it's given him out. He's gone, caught behind. Movement away, nicked through to the wicketkeeper. आनू पानिया 22 रन बनाए 26 गेंदों में। Raj Limbani. In the air, wicketkeeper settling underneath. He takes the catch. Prasidh Krishna has struck finally. Shashwat is dismissed for 104. It's 245 for 7. महेश पीथे आए हैं। Soft, simple राइट catch. खेलना चाहते थे और Mahesh Pithia contributes 1. Bhargav Bhatt. लीजिए, अभी हथियार डाले नहीं है। Swung away on the onside. Swung away, fielder diving forward. और ये प्रयास किया और Slow delivery. Slow delivery, run out opportunity. Short of the crease. 9 wickets down now. 12 to win from 4. Bhargav Bhatt run out for 15, 270 for 9. मेरे वाला आखिरी बल्लेबाज। शॉट तो खेला है लेकिन सिंगल ही मिलेगा। ओह, ये तो मिसफील्ड हो गया। Will take a single. He's going back for the second. Opportunity for run out.
It's broken the stance. Keep it rolling. Keep it rolling. Yeah. इस तरह से आखिरी विकेट रनआउट के रूप में और कर्नाटक ने एक बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला 5 रन से जीता है. 104 for Shashwat. 2 wickets for Shreyash Gopal. 2 for Kaushik. Karnataka through to the. हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट लेकर. जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको हर वीडियो में क्रिकेट से रिलेटेड हो रहे बदलाव, हो रहे चेंजेज और जो भी क्रिकेट में अपडेट रहता है मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूं. तो आज चलिए बात करते हैं कि क्रिकेट के दुनिया में क्या चल रहा है. तो गिल की गिरती फॉर्म बन रही है चुनौती. एशिया के बाहर शुभमन के प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. बल्लेबाजी की बदली तकनीक भी हो सकती है परेशानी का सबब. भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल, जो कुछ समय पहले ही टेस्ट क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए चर्चा में थे, अब मुश्किल दौरे से गुजर रहे हैं. उनके पहले 6 टेस्ट स्कोर 45-35 न बाद 50, 31-7 और 91 इस बात की गवाह है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एक बेहतरीन शुरुआत की थी. इसके बाद एशिया के बाहर उनके प्रदर्शन में गिरावट आई है. शुभमन पिछले 18 टेस्ट मैचों में केवल 2 बार 30 का आंकड़ा पार कर पाए हैं. 36 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जनवरी 2023 में और 31 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिसंबर 2023 में. इसके उलट एशियाई पिचों पर उनका औसत लगभग 42 का रहा है. 5 अर्धशतक घरेलू पिचों पर और 5 शतक. 2024 में गिल ने 9 टेस्ट मैचों में 50.66 की औसत से रन बनाए, जबकि उनके साथ ही शीर्ष 7 बल्लेबाजों का औसत 36.38 था. गिल का प्रदर्शन लगभग 40% बेहतर था. ये आंकड़े गिल की प्रतिभा और उनकी घरेलू पिचों पर खेल को समझने की गहराई को दर्शाता है. गिल की तकनीक उन्हें अन्य भारतीय बल्लेबाजों से अलग बनाती है. गिल के बल्लेबाजी का आधार उनकी बैक फुट पर पकड़ है. बचपन से ही उन्होंने शॉर्ट गेंदों का अभ्यास किया. उनके पिता लखविंदर सिंह ने बताया कि गिल रोजाना 1500 शॉर्ट गेंदों का अभ्यास करते थे. उनका बैकलिफ्ट ऊंचा रहता है, जिससे वे शॉर्ट गेंदों का आसानी से खेल पाते हैं. ऐसी तकनीक ने ही शायद शुभमन गिल को उनके करियर की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में इतना सफल बनाया. यहाँ की उछाल भरी पिचों पर आड़े बल्ले से खेलने वाले शॉट ज़्यादातर कारगर साबित होते हैं. गिल की प्रतिभा और गेंद की लंबाई को जल्दी समझने की उनकी क्षमता ने उन्हें बल्ले के कोण को बदलकर ऑफ साइड के लगभग हर क्षेत्र में शॉट खेलने की अनुमति दी. यह कवर और एक्स्ट्रा कवर जैसे क्षेत्रों में भी गेंद पहुंचा सकते हैं, जहां आमतौर पर सीधे बल्ले से शॉट खेले जाते हैं. हालांकि ज़्यादातर टेस्ट मैच एशिया में खेले जाते हैं, जहां पिचों पर उछाल कम होता है. ऐसे में गिल की स्वाभाविक तकनीक का फायदा कम हो जाता है और कमजोरियां ज़्यादा उभर कर सामने आती हैं. 2023 के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान गिल की तकनीक में बदलाव देखने को मिला. उन्होंने अपनी बैटिंग में फ्रंट फुट प्रेस, आगे बढ़कर खेलने की तकनीक जोड़ा. इस बदलाव का उद्देश्य एशियाई पिचों पर कम उछाल का सामना करना. फ्रंट फुट प्रेस में गिल ने गेंद की दिशा में थोड़ा वजन डाला. हालांकि इस बदलाव से उनके स्वाभाविक शैली पर असर पड़ा. गिल अब चौथे स्टंप लाइन पर आने वाली गेंदों पर फंसते नजर आते हैं. उनकी आड़ी बैटिंग और बैकफुट पर निर्भरता का मतलब है कि वे गेंद को थोड़ा दूर से खेलते हैं. इससे उनके और पैड के बीच गैप बनता है, जिससे वे अंदर आती गेंदों पर पगबादा या बोल्ड हो जाता है. टेस्ट क्रिकेट में एशिया के बाहर उनकी फॉर्म में गिरावट उनकी तकनीक में सुधार की ज़रूरत को दर्शाती है. अगर वे अपनी तकनीकी कमजोरी पर काम करते हैं तो भारतीय क्रिकेट में लंबे समय तक योगदान दे सकते हैं. भारतीय टीम प्रबंधन को गिल के साथ मिलकर उनकी तकनीकी कमजोरियों पर काम करना होगा. जैसा कि आप जानते हैं, पिछला जो BGT था वो भी शुभमन गिल के लिए बहुत अच्छा नहीं गया. चौथे मैच में तो उनको ड्रॉप भी किया गया और 5वें मैच में ऐसा हुआ कि इनको खिलाने के लिए जो रोहित शर्मा कप्तान थे वो खुद बैठ गए थे, वो नहीं खेल रहे थे 5वां. फिर भी इन्होंने कुछ खास 5वें मैच में भी नहीं किया. तो जो आने वाला जो इंग्लैंड सीरीज है T20 का, या फिर इंग्लैंड वनडे सीरीज, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी, फिर उसके बाद
इंग्लैंड टेस्ट मैच। तो इनके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती रहने वाली है कि गिल उनका कैसे सामना करते हैं, अपनी चुनौतियों को कैसे सामना करते हैं और कैसे एक बार फिर फॉर्म में आते हैं। तो ये देखना बहुत बड़ी एक चुनौती है गिल के लिए। औसत की बात करें, टेस्ट औसत 2024 में उनका 50.66 रहा है। आंकड़ों में गिरावट एशिया में 42 है, तो वही एशिया के बाहर 26 औसत है। शतक की बात करें तो 5, अर्धशतक 5, और एशिया के बाहर कोई अर्धशतक 2 है और शतक कुछ भी नहीं। भविष्य की चुनौतियां शुभमन गिल के लिए, अगली बड़ी चुनौती उनकी तकनीक में संतुलन बनाना है। उन्हें यह तय करना होगा कि उनकी पुरानी तकनीक और नए बदलाव में कौन सी शैली उनके लिए ज़्यादा कारगर है। तो शुभमन गिल को फॉर्म में आना ही होगा अगर वो टीम में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं जो इनकी जगह ले सकते हैं अगर ये लगातार फॉर्म में नहीं आते हैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छा चांस मिल रहा है। रन नहीं बनाने के बाद भी शुभमन गिल को एक अच्छा बैट्समैन माना जाता है और बीसीसीआई, चयन समिति और कप्तान भी इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से खराब फॉर्म के बावजूद ये टीम में अभी तक बने हुए हैं। बाकी शुभमन गिल की बल्लेबाजी की क्रम शैली में, बल्लेबाजी इनका जो फॉर्म नहीं चल रहा है या शुरुआत में उन्होंने कैसे की, अगर आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि गिल के बारे में आपके क्या सुझाव है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं अगले न्यूज़ पर। अगला हमारा न्यूज़ है, रिंकू सिंह और नीतीश पटना में लगाएंगे चौके और छक्के। पटना में भारतीय टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी रिंकू सिंह और नीतीश राणा चौके छक्के लगाते हुए नजर आएंगे। दर्शकों को इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन 23 से 26 जनवरी तक मोइनुल हक स्टेडियम में देखने को मिलेगा। रणजी ट्रॉफी के दूसरे चरण का मुकाबला बिहार बनाम यूपी से होने जा रहा है। इसके अलावा यूपी टीम के बल्लेबाज स्वास्तिक चिकारा, माधव कौशिक, प्रियम मर्ग, समीर रिजवी का प्रदर्शन दिखेगा। रणजी ट्रॉफी इस वर्ष 2 चरणों में खेला जा रहा है। ग्रुप सी में खेल रही बिहार टीम को 5 मैचों में 4 में हार मिली है, जिसमें से 3 में पारी की हार। बंगाल के खिलाफ मुकाबला नहीं खेला जा सका। बिहार के पास अभी 1 अंक है। रणजी ट्रॉफी के दूसरे चरण के मुकाबले 23 जनवरी से शुरू होंगे। दूसरे चरण में बिहार अपना पहला मैच यूपी से अपने घर में खेलेगा, जबकि दूसरा मैच इस सत्र का अंतिम मैच 30 जनवरी से मेजबान केरला से खेलेगा। बिहार को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। बिहार को यूपी के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना होगा। बिहार लगातार 4 मैच हारा है, 2 मैच में भी हार चुका है, 2 मैच घर में हार चुका है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश से हारा है। तीसरा मैच यूपी से होने जा रहा है। यह मैच बिहार को हर हाल में जीतना होगा। इस सत्र के 2 मैच में बिहार को 1 जीतना होगा और 1 ड्रा करना होगा। ऐसा नहीं होने पर बिहार एलिट ग्रुप से बाहर निकलकर प्लेट ग्रुप में चला जाएगा। बिहार को एलिट से प्लेट ग्रुप में जाने का खतरा। बिहार पिछले 2 सत्र से एलिट ग्रुप में खेल रहा है। बिहार उसके पहले 2022 में मणिपुर को पराजित कर एलिट ग्रुप में पहुंचा था। बिहार को हर हाल में 2 मैच में से 1 जीतना होगा, तभी एलिट में रह पाएगा। अब तक के प्रदर्शन से बिहार का प्लेट ग्रुप में जाने का खतरा मंडरा रहा है। बिहार अगर यह दोनों मैच हार जाता है तो एलिट ग्रुप से प्लेट ग्रुप में चला जाएगा। बिहार को एलिट ग्रुप में बने रहने के लिए 7 अंक लाने होंगे। अभी महज 1 अंक है, उसके लिए पारी के बढ़त आधार पर 3 अंक मिलेंगे। यदि 1 मैच जीत जाता है तो सीधे 6 पॉइंट मिल जाएंगे। तो रणजी मैच में मिले अंक की बात करते हैं तो मेघालय के खिलाफ मेघालय 0 है, वहीं पर पंडिचेरी 2 है, बिहार 1 है, असम के पास 5 है। अब तक 5 मैच खेले गए हैं। बिहार कर्नाटक, बिहार मध्य प्रदेश, बिहार बंगाल, बिहार हरियाणा और बिहार पंजाब। अब यूपी से मैच होगा। जैसा कि मैंने बताया 2 मैच है, 1 मैच जीतना जरूरी है बिहार के लिए, नहीं तो बिहार का प्रदर्शन वैसे ही खराब रह रहा है।
तो बिहार में क्रिकेट की प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन बिहार में जो सुविधा प्रोवाइड नहीं की जाती है, जिससे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे बल्लेबाज जो है वो बाहर किसी और राज्य से खेलने जाते हैं। अगर बात करें आकाशदीप की, जो कि सासाराम के हैं, वो अच्छा गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बिहार क्रिकेट की ओर से ज़्यादा सुविधा नहीं मिलने की वजह से वो बंगाल की ओर से खेलते हैं। और देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी वो गए थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेले, अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं और एक अच्छे होनहार क्रिकेटर भी है। इसके अलावा बात करें हम लोग कि ईशान किशन भी बिहार के हैं, लेकिन वो भी झारखंड की ओर से खेलने के लिए मजबूर है, क्योंकि अगर कोई होनहार क्रिकेटर है, अगर वो बिहार की ओर से खेलता रहा तो उसका क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने का चांस कभी नहीं मिलने वाला है। तो बिहार के इस हालात पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें। चलते हैं अगले न्यूज़ पर। कोहली के कारण युवी का करियर जल्द खत्म हुआ, ये कहना है रोबिन उथप्पा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर का। मैं विराट की कप्तानी में बहुत अधिक नहीं खेला हूं, लेकिन एक कप्तान के रूप में वह माईवे या हाईवे की तरह कप्तान थे। पूर्व भारतीय बल्लेबाज रोबिन उथप्पा ने कैंसर को मात देकर टीम में वापसी करने वाले युवराज के अंतर्राष्ट्रीय करियर को जल्दी खत्म करने के लिए परोक्ष रूप से विराट कोहली को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस तेज तर्रार ऑलराउंडर की फिटनेस में कुछ रियायत देने के आग्रह को तत्कालीन भारतीय कप्तान ने ठुकरा दिया था। उथप्पा ने शुक्रवार को कहा, युवी या युवराज सिंह का उदाहरण ले, उस व्यक्ति ने कैंसर को हरा दिया। वह अंतर्राष्ट्रीय टीम में वापस आने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति ने 2 बार विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। जब आप कप्तान बनते हैं तब ऐसे खिलाड़ी के लिए कहते हैं कि उसके फेफड़ों की क्षमता कम हो गई है, जबकि आपने उसे संघर्ष करते हुए देखा है। उन्होंने कहा, मुझे किसी ने इस बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं चीज़ों का आकलन करता हूँ। आपने उन्हें संघर्ष करते हुए देखा है। फिर जब आप कप्तान बनते हैं, फिर आप कुछ मानक तय करके उनका स्तर बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन हर मामले में कुछ अपवाद होते हैं, और यहाँ उस व्यक्ति की बात हो रही है जो अपवाद होने का हकदार था। उस व्यक्ति ने न सिर्फ आपके लिए टूर्नामेंट जीते हैं, बल्कि कैंसर को भी हराया है। फिटनेस टेस्ट में नहीं दी 2 अंक की कटौती। उथप्पा ने खुलासा किया कि युवराज सिंह ने फिटनेस टेस्ट में 2 अंक की कटौती की मांग की थी, लेकिन टीम प्रबंधन ने उन्हें कोई रियायत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि इससे पहले उन्होंने टीम में शामिल होने के लिए फिटनेस टेस्ट पास किया था। उन्होंने कहा, जब युवी ने 2 अंक की कटौती का अनुरोध किया तो उन्हें यह नहीं मिला। वह फिटनेस टेस्ट पास करके टीम में आए, लेकिन एक टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया और फिर उनकी तरफ कभी गौर नहीं किया गया। विराट तब कप्तान थे, जो कुछ हुआ उनके अनुसार हुआ। आगे की खबर की बात करते हैं। पंत हर मैच में जड़ सकते हैं शतक, ये कहना है रविचंद्रन अश्विन का। दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि अगर ऋषभ पंत अपने आक्रामक और रक्षात्मक खेल के बीच संतुलन बनाने में सफल रहते हैं तो प्रत्येक मैच में शतक बना सकते हैं। अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता की पंत की सराहना करते हुए अश्विन ने कहा, उनके कई शॉट बहुत जोखिम वाले होते हैं, इससे वो अपनी क्षमता का सही आकलन नहीं कर पाते हैं। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल में कहा, हमें उसे ठीक से बताना होगा कि अगर उसे ठोस या किसी इरादे के साथ बल्लेबाजी करनी है तो उसे क्या करना होगा। उसने बहुत सारे रन नहीं बनाए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रन नहीं बनाए, उनके पास बहुत अभी समय है। आगे और एक और खबर की बात करते हैं कि चहल के बाद अब मनीष के तलाक की अटकलें। जैसा कि आप इन दिनों सुर्खियों में देखे होंगे कि चहल के तलाक की खबरें वायरल है, उसी तरह अब लंबे समय से राष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे और उसकी पत्नी आश्रिता शेट्टी के बीच भी तलाक की चर्चाएं जोर पकड़ रहा है। तो ऐसी चर्चाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।